जिसने भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा लेना होता है उसकी एक ही समस्या होती है कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हर एक स्टूडेंट को होती हैं जब किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है। हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से हर रोज बच्चों की समस्याएं सॉल्व करते हैं। यदि आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका हल आप नहीं निकाल के आ रहे, स्क्रीन के ऊपर आपको 3-4 नंबर नजर आ रहे हैं, ये हमारे टीम मेंबर्स के नंबर हैं। किसी भी नंबर पर कॉल करके आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा अक्सर रिफ्यूज होता है नकली फंड की वजह से। आज एम्बेसी द्वारा एक फंड का ही कागज है जिसको चेक किया जा रहा है। आइल्स सबके पास है, 12वीं पास आउट बच्चे ने की होती है। अगर आप खुद के फंड शो कर देते हैं आपका वीज़ा लग जाता है। अगर आप सर्चिंग एफडी लगाते हैं, एजेंट द्वारा शो किए गए फंड दिखाते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। हेलो जी, राम राम जी। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम तो जगसीर है जी। जी, क्या जानना चाहते हो जी? मेरी वाइफ भी ਸਰਵਾਇਰ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, कितना पढ़े वाइफ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਗੈਪ ਆ +2 2020 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। +2 2020 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਨੇ? ਆਲ ਓਵਰ 6.5 ਜੀ, 106, 2 6.5, 1 7.5 ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ 12ਵੀਂ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? 75 ਜੀ। 12ਵੀਂ ਚ ਭਾਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਰੱਖੇ 12ਵੀਂ ਚ? ਆਰਟਸ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਆਰਟਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਇਹ 3 ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 17-18 ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, B.Ed ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ B.Ed ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਊਗੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਟੱਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਰਨਾਲੇ ਜੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਧਨੌਲਾ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਣਾ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੁਪਈਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ। ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ। ਫਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਨ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਪਰੋਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 13 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗਹਿਣੇ ਵਾਹਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਜੀ। 12ਵੀਂ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ? ਆਰਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟਸ ਚ ਕੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਾਉਂਗਾ, 6:30 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਸਪਾਊਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, $2000 ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਵਾਕ ਨੇ, 4 ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, 4 ਜੀਆਂ ਦੀ $8000 ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। 4 ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, $15000 ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ। $15000 ਤੇ $8000 ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ $23000 ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ 10 12 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੌਖਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ बेनिफिशियरी भी ਏਜंट ही ਹੁੰਦਾ। हेलो जी, राम राम। हेलो जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं हैदराबाद से मोहम्मद शाहरुख खान बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शाहरुख खान? हाँ जी। जी मोहम्मद साहब, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरे को ऑस्ट्रेलिया का जो है सो वर्क वीजा के बारे में जानकारी चाहिए। सर उसकी 50 लाख रुपया तनख्वाह होती है उसकी 1 साल की। 2 साल का वीज़ा मिलता है। ओके। 2 साल में 1 करोड़ रुपया आपको तनख्वाह मिलनी है वहाँ से। ओके। तो आप देख लो, आप 1 करोड़ रुपए वाले बंदे हो, आपके पास कोई ऐसी स्किल है कि आपको कोई 1 करोड़ रुपए के लिए रख लेगा? अब ऐसा स्किल बोले तो मैं तो देखिए एसी टेक्नीशियन का काम करता हूँ। तो नहीं, ये तो मजदूर वाला काम हो गया ना जी। वो लोग को आदमी चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए जी। तो अभी मेरा और एक ये है जी कि मेरा छोटा वाला भाई जो है सो बीटेक करा हुआ है, CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हाँ जी। तो उसके लिए स्टडी वीजा के बारे में भी नॉलेज भी चाहिए। 8 से 10 लाख रुपया फीस होती है। 10 लाख रुपए में आदमी चला जाता है। 10 लाख रुपया फीस होती है। 10 लाख रुपए में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए चला जाएगा बच्चा। मास्टर डिग्री में उसका दाखला होगा। तो उसका 10 लाख रुपए चार्ज आपका है? नहीं, 10 लाख रुपए पढ़ाई का फीस है। जिधर पढ़ने जाएगा उधर 1 सेमेस्टर का फीस भरना पड़ता है पहले। हाँ, तो 1 सेमेस्टर 10 लाख रुपए। हाँ, 1 सेमेस्टर का 10 लाख होता है। टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं 2 साल में। 2 साल की मास्टर डिग्री का फीस 40 लाख रुपए होता है। तो है परफेक्ट। मैं ये जैसे कि कुछ होम लोन पे अप्लाई करके स्टडी
ये स्टडी पे इस पे ही लोन करना था, इसके लिए ऐसा कुछ कर सकते क्या? हाँ हाँ, हैदराबाद में ऐसे ही लोन मिल जाता है ना, आपकी गवर्नमेंट की स्कीम बहुत होती है, आपको वैसे ही लोन मिल जाएगा उधर तो। हाँ हाँ जो मास्टर डिग्री करने जाता है ना, उसको सरकार लोन दे देती है आराम से। जी जी जी। तो अपने को वहाँ पे ऐसा पढ़ते में कमा कितना पैसा अपन कमा ले सकते हो? 5 से 6 लाख रुपया आराम से एक आदमी महीने का कमा लेता है। कमा लेता है? जी अच्छा, तो इसका एक सेमेस्टर का फीस 10 लाख होता है यानी कि? जी जी जी। अगर कॉलेज में जाते हैं 10 लाख है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 15 लाख है। अच्छा, जी। तो नहीं अपने को 10 लाख कहाँ पे है? कॉलेज में दो तरह का होता है ना, एक कॉलेज होता है, एक यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी में फीस ज्यादा होता है। अच्छा, तो नहीं अपने को तो उतना अपने को तो यार काम करने जाना है ना, अपने को तो उधर जाके काम करना है। जो कॉलेज में 2 दिन का पढ़ाई है, 5 दिन काम करेंगे। बस बस वही है वही है। तो अपने को चीप वाला कॉलेज चाहिए। अरे हो जाएगा सर जी, वो हमारा काम है। आप अपना डिटेल ना हमें व्हाट्सएप पे भेज दो। मैं हफ्ते 10 दिन बाद आता हूँ हैदराबाद, यहाँ हमारा एक दोस्त है, उसकी ऑफिस में हम लोग मिलते हैं लोगों को। आप अपना डिटेल डाल दो, हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, आप हैदराबाद मिल लेना मुझे। अच्छा, हैदराबाद में कब आएंगे आप? मैं हफ्ते 10 दिन में आता हूँ, आपका डिटेल हमें भेज दो, हम आपके साथ सारा कुछ काउंसलिंग ऑनलाइन करके मैं आपको हैदराबाद मिल लूंगा अगले हफ्ते। ओके, आप अपना डिटेल हमें अभी व्हाट्सएप पे भेज दो। ओके जी धन्यवाद। बहुत सारे तरीके होते हैं। इफ़ यू आर कंप्यूटर इंजीनियर यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, इफ यू आर नर्स यू कैन अप्लाई फॉर हेल्थ केयर प्रोग्राम। देयर आर लॉट ऑफ वेज। सबसे आसान तरीका क्या है, आप पढ़ाई का वीज़ा लीजिए, आपको किसी के मेहनत तरला नहीं करना। आपने कॉलेज को फीस दी है, कॉलेज ने आपको स्पॉन्सर किया, कॉलेज में आपने पढ़ना, पढ़ने वाले को वर्क परमिट मिलता है, पढ़ने वाले को पीआर मिलती है। समझिए, अगर आपकी उम्र 35 साल भी है फिर भी आपको मास्टर डिग्री में दाखला मिलता है। अगर आपकी उम्र 50 साल है फिर भी आप पीएचडी करने जा सकते हैं। दुनिया में पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, बस उसके लायक होना चाहिए। आपको अंग्रेजी की समस्या आएगी, आपके आइल्स के अंदर 6.5 7 बैंड है, आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, चाहे पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए हैं फिर भी दाखला हो जाएगा। ये 10 12 15 लाख रुपए में चले जाएंगे, वर्क परमिट के चक्कर में फंस जाएंगे, धोखा होगा आपके साथ। अगर आप जेन्युइन हैं, आप इन्फोसिस पे काम करते हैं, आप टेक महिंद्रा पे काम करते हैं, आपका 20-25 लाख का यहाँ पैकेज है, मिल जाएगी नौकरी। आपका अगर लेवल नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जो स्पेशल स्किल वाले लोग होते हैं ऐसे लोगों को 482 वीज़ा मिलता है। बाकी जहाँ फिर जुगाड़ से मिलता है, जुगाड़ से कोई एम्प्लॉयर आपको कागज़ दे दे वो बुला ले, कई बार ज़रूरत होती है। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्चर हैं, आपने ऐसा कोई नक्शे बनाने का, को कैड कैम की पढ़ाई कर रखी है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी है, फिर नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। ज़रूरत है उनको, नर्सों की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड एआई वाले लोग चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, लोग चाहिए। आपको कंपनी ढूंढनी है जिसको आपको हायर करना है। हमारे थ्रू चाहते हैं द बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्टडी वीज़ा। आप किसी भी तरह का काम करते हैं, जो काम करते हैं उसके आगे पढ़ने जा सकते हैं। हाँ, आप अनपढ़ हैं, कोरे चिट्टे अनपढ़ हैं, आपके पास कोई आइलेट पीटी पुटी है नहीं, और आप सोचते हैं जैसे लोग दुबई जाते हैं वर्क परमिट आप भी लेके जाएंगे, नहीं जा सकते। ये 5 स्टार कंट्री है, ये ब्रांड है। ऑस्ट्रेलिया एक ब्रांड है जहाँ पर $75,000 से तनख्वाह चालू होती है। डॉलर का रेट 55-60 रुपये रहता है। 50 लाख रुपया तनख्वाह शुरू होती है। शनि इतवार के अलग से पैसे मिलेंगे, रात को करोगे अलग से मिलेंगे, ओवर टाइम के अलग से मिलेंगे। तो सोचिए, जहाँ पर इतना रुपया मिलेगा उसको लोग को क्रीम चाहिए। हमारे पास 10 बंदे आते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, 2 एलिजिबल होते हैं, बाकी लोग एलिजिबल ही नहीं होते। अब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन के ऊपर हमने आपको 4 नंबर दे रखे हैं। ये चारों साथी मेरे सामने बैठे हैं। इन चारों नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर कागज़ भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन ले सकते हैं। सलूशन नहीं निकल सकता जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई डिलीवर है, कोई मेसन कारपेंटर है, नहीं जा पाएंगे भैया आप। हाँ, आप L&T में काम करते हैं, आपकी 80,000 रुपया तनख्वाह है, चले जाएंगे आप। समझिए, यहाँ वीज़ा कागज को मिलता है। 2 प्रकार के मुल्क होते हैं। एक मुल्क के अंदर आप जाते हो, आप
तशरीफ़ रखते हो, आप अमेरिका एम्बेसी में गए, आपको गोरे साहब ने पूछा वाई यू वांट टू गो यूएस, आपने जैसे भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोली, आपने हाई क्लास अंग्रेज़ी बोली, आपकी शक्ल सूरत, आपके बाल, आपके कपड़े, आपका उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस आपको वीज़ा दिलाता है। दूसरा, आपने वीज़ा डाला कनाडा में, आपने वीज़ा डाला ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ कोई नहीं आपका रंग रूप देखता, कद काठी देखता, वहाँ देखे जाते हैं दस्तावेज, कागजात, कोई इंटरव्यू नहीं होती। एक ऑफिसर आपके कागज देखता है। ये दो प्रकार का वीज़ा है, एक आप खुद लेने जाते हैं, एक एजेंट लेने जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा का वीज़ा है वो एजेंट द्वारा लिया जाता है, अमेरिका का वीज़ा आप खुद लेने जाते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, मैं शर्त लगा के ले लूँगा, मुझे ये काम करना आता है, मैं पहले बताऊँगा आपको ये रिफ्यूज़ क्यों हुआ है, उसके बाद बताऊँगा ये मिलेगा कैसे। हो सकता है 6 महीने लग जाए मिलने में, हो सकता है साल लग जाए। समझिए, जब आपकी फाइल दोबारा लगती है, ऑफिसर उसके अंदर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस ढूंढते हैं। पहली दफ़ा आपने नकली कागज लगा के अप्लाई करा, दूसरी दफ़ा आप क्या देंगे, आपने फंड नकली दिए, एजेंट ने बना दिए, पैकेज हो गया। अब आगे करना क्या है। रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा लेना मुश्किल होता है। मुश्किल पता क्यों होता है? क्योंकि आप मान लेते हो कि आप जा ही नहीं सकते। जो सोच लेता है कि मुझे जाना है और मेरे अंदर कोई नुक्स नहीं है, उसको वीज़ा मिल जाता है। दोबारा आपको सीओ ही कोई नहीं देगा, मैं आपको सीओ ही लेके दूंगा, जो मेरी जॉब है। बस आप जायज़ होने चाहिए। जिसकी भी रिफ्यूज़ल आई है ऑस्ट्रेलिया से, साल 2025 में पड़े हैं और आपको एम्बेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया है, समझिए आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपको रिफ्यूज़ल इसलिए मिला है क्योंकि आपकी फाइल ढंग से प्रेजेंट नहीं करी गई, आपकी फाइल में दस्तावेज सही से नहीं लगाए गए, इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ऐसा ही कनाडा में हो रहा है, जहां 90% फाइलें रिफ्यूज़ हो रही हैं। रिफ्यूज़ल के बाद आप मान लेते हैं और टिक जाते हैं। आपको हार नहीं माननी। आपके घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार होता है, आप उसका इलाज कराते हैं, उसकी सेवा नहीं करते। हर बीमारी का इलाज होता है। आपको पता है किसी पेशेंट की मृत्यु होनी है, आप उसको तड़फने के लिए छोड़ते नहीं हैं, आप लास्ट मोमेंट तक उसके ऊपर पैसे खर्चते हैं। तो यार, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। एक मौत के ऊपर आप इतना रुपया लगा देते हैं जहां पर आपको पता होता है, उम्मीद होती है कि ये बचेगा नहीं। हम तो यार ज़िंदगी दिला रहे हैं आपको, हमारे ऊपर तो विश्वास रखो। मेरा खुला चैलेंज है उन लोगों को जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, अगर तुम ईमानदार हो, अगर 6 महीने साल का समय दे दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के मुल्क में पहुंचा सकता हूं। पिछले 18 साल में मैंने सीखा है कैसे रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा लेते हैं। इन हाथों से हज़ारों फाइलें लगा चुका हूं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, हम कमेंट नेगेटिव भी लिखते हैं, महंगे हैं हम, हाँ बहुत महंगे हैं। आपका वीज़ा हो गया रिफ्यूज़, अब जाना कहाँ आपने, ये बताइए। रिफ्यूज़ल ले ली आपने, टेक के बैठ गए, व्हाट यू विल डू? यू डोंट हैव एनी सोल्यूशन, आई हैव लॉट ऑफ सोल्यूशन। तुम्हारी आज रिफ्यूज़ल आई है, हमारी रोज़ आती है, हमारी सुबह भी आती है, शाम को भी आती है। हम रिफ्यूज़लों में खेलते हैं सारा दिन, रिफ्यूज़ल देखते हैं, रिफ्यूज़ल को समझते हैं। आपका रिफ्यूज़ल आ गया, आप रोना चालू कर देते, हाय मेरी किस्मत में नहीं है। ये वीज़े वूज़े भगवान ने नहीं देने होते, भगवान ने दिमाग दिया आपको। स्वस्थ हैं, शुक्र करिए भगवान का, थैंक्स करिए, हे ईश्वर मैं देख पा रहा हूँ, मेरी दोनों आंखें खुलती हैं। बड़ी दुनिया जिनकी एक आंख खुलती है, बुद्धि नहीं होती लोगों को, चल फिर नहीं सकते, सांस लेने वाले लोग नहीं होते। अगर आप स्वस्थ हैं, शुक्रगुजार करिए ईश्वर का। आपका वीज़ा नहीं लगा, ये एक इंसान ने रिफ्यूज़ किया, एक इंसान ने लेके देना है, इसके अंदर भगवान नहीं होते। जब आप एक गलती करते हैं, उसको सुधारा जाता है, गलतियां दोबारा नहीं करते। कानून को समझिए, पढ़िए। वाई दे आर रिफ्यूजिंग योर स्टडी परमिट? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर एक्सप्लेनेशन। हु विल गाइड यू? दैट्स आवर जॉब, दैट्स नॉट योर जॉब। जब भी किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उस पल, उस मोमेंट
वो आदमी को लगता है मेरी दुनिया खत्म हो गई। यही बच्चा जब महीने 2 महीने में हमारे से वीजा ले लेता है, उसको लगता है तो आसान ही पड़ा था। कल एक श्रीमान जी से बात हुई मेरी फोन पे अमृतसर में, अरे जी हमारे बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो गया कनाडा का। ठीक है सर, आप क्या चाहते हैं? सर वीजा लेना चाहते हैं। मैं मिल जाएगा जी। कह रहे कितने पैसे लोगे आप? मैं कहा जी मैं पूरे पैसे लूंगा। कह रहे आप पैसे कम ले लो। मैं कम क्यों लूं? कह रहे आपके पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं कहा जी मैंने काम करा के लेने हैं। कह रहे आपके पैसे ज्यादा हैं। मैं ज्यादा मतलब एक प्राइस लिस्ट तो है ही नहीं, भारत सरकार ने कोई MRP तो सेट करी नहीं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, ये मेरी सर्विस है। कह रहे बट बाकी लोग बहुत कम पैसों पे करते हैं। ये आप कहीं और से करा लीजिए। कह रहे अप्लाई किया था, लगा नहीं। मैं कहा जिस एजेंट से आपने अप्लाई करा था उसी को पूछ लीजिए मैं क्या करता हूँ, उसको पूछ लीजिए मेरे पैसे ज़्यादा क्यों हैं। कह रहे आप अप्लाई करा देंगे। मैं गारंटी लूँगा आपका वीज़ा लेके दूंगा। होता क्या है, एक इंसान ना गलतियाँ करता है, उसको पता नहीं होता। जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, अक्सर दिल्ली वाले लोग जब रिफ्यूज़ल होती है हमारे पास आते हैं। जब भी किसी के नंबर कम होते हैं, बैंड कम होते हैं, आइल्स नहीं होती, कुछ भी समस्या होती है ना, दिल्ली से स्पेशली लोग वो सलाह लेने आते हैं, पूछते हैं, अप्लाई नहीं करते, खुद ही अप्लाई करते हैं। जब नहीं लगता फिर आते हैं, सर जी वो हमने खुद करा था ना, हमारा लगा नहीं, अभी आप ले दो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चुस्त चालाक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हमारे कर्मों में है आपके पैसे तो हमारे घर पे आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसकी कोई वजह है। ऐसे हर किसी को ये वीडियो नहीं दिखती। आप क्यों सुन रहे हैं ये वीडियो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, और अगर आपके तक ये वीडियो पहुंचा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। ईश्वर आपको इन्फॉर्मेशन दिलवा रहे हैं मेरे माध्यम से। अगर आपको मेरी बात सुन के, मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं सही गाइडेंस दे रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तो ज़रूर आइएगा मेरे पास। अगर आपको लग रहा है हम आपको गुमराह कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मत आइएगा। आपको हमारे से कोई भी काम कराना है, पहले YouTube पे जाके हमारे 10, 15, 20 वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा हम क्या करते हैं। आजकल हम लोग वीडियो अपलोड नहीं करते स्टूडेंट्स की। जब भी किसी स्टूडेंट की वीडियो अपलोड करते हैं, आज के बच्चों को एतराज होता है, प्राइवेसी लीक होती है उससे। इसलिए बच्चा नहीं चाहता मेरी वीडियो डाली जाए, और हम भी नहीं चाहते किसी की प्राइवेसी खराब हो। एक समय था जब दिखाते थे वीजे हम लोग, देखिए जी इतने लग गए, इतने लग गए। अब काम ही यही है ना। अब निरमा क्या है, आपको कोई पूछे निरमा सर्फ है यार। कॉलगेट क्या है, कॉलगेट टूथपेस्ट है। वीजा क्या है, हम कौन है, हम वीजा दिलाते हैं, दुनिया को पता है। इसलिए हम वीजे दिखाते नहीं लोगों को। अगर आपका काम नहीं हुआ हमें कॉल करिए, हम आपको वीज़े तक पहुंचाएंगे। कुछ भी जानना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, ये चारों नंबरों पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे साथी ऑनलाइन हैं, उनके कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, जब भी किसी ने अप्लाई करना होता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और लोग चाहते हैं इस कमी के बावजूद भी हमारा वीज़ा लग जाए। अगर आपके अंदर भी कोई कमी है, आप अभी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास पायल मनचंदा जी ने मैसेज लिखा है। पायल मनचंदा जी जो इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं। हरी जी मेरा BCom ऑनर्स करा है। अगर आपने BCom ऑनर्स करा है, आप मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आशीष जानना चाहते हैं मेरा ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट करवाना है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट करवाना है तो आप ऑस्ट्रेलिया में नौकरी ढूंढिए। जैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी, आप नौकरी के कागज़ लेके आ जाना, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। हमारी फ़ीस 50,000 रुपये है। करोड़ रुपए की नौकरी होती है। पहले देखिए आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि आपको कोई करोड़ रुपए के लिए रख सकता है। अगर नहीं है तो आराम से टिक के बैठिए, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडी वीज़ा अप्लाई करिए या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। इंदरपाल जी, आई हैव नो लॉट ऑफ मनी बट सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। देखिए पैसे का काम तो पैसे से होगा। मनी है तो हनी है, हनी है तो मनी है। हेलो जी, राम राम। हेलो जी राम राम जी। हाँ सर, राम राम जी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सतनाम सिंह है। क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने सर ITI कर रखी है वेल्डर से। हाँ जी। और सर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, विदेश ना। हाँ जी हाँ जी। दुनिया में 200 कंट्रियां हैं विदेश में। कौन से विदेश जाना है आपको? सर यूरोप कंट्री जाना चाहता हूँ सर। यूरोप के अंदर 40 मुल्क हैं,
वहाँ पर नौकरी अप्लाई करिए, जहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी फिर वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर। सर आपके थ्रू कोई मतलब नहीं, हमारे थ्रू नहीं, हम तो भैया पढ़ने के लिए भेजते हैं लोगों को। अगर पढ़ने के लिए जाना है, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर, पढ़ने के लिए तो नहीं जाना है सर, जॉब के लिए ही जाना है नहीं, सर। जॉब में हमारे पास नहीं है सर। हेलो जी, राम राम जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਭੈਣ ਜੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੈਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਤਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਦਸੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਉਹ ਮੈਲਬਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਅਜੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਲਾਊਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾਊਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਵਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਲ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਪਵਾਇਆ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ठीक है सर, ठीक है। चंगा भाई। प्रोटेक्शन वीज़ा आप रिफ्यूजी क्लेमेंट के तरीके से डालते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में लोग एयरपोर्ट पे उतर के रिफ्यूजी डालते थे, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में लोग रुकने के लिए प्रोटेक्शन वीज़ा डालते हैं। जो भी प्रोटेक्शन वीज़ा डालता है उसके सारे परिवार के ऊपर एक तरह का बैन लग जाता है। या तो ये प्रोटेक्शन वीज़ा सक्सेसफुली आपका ग्रांट हो जाएगा, अगर ग्रांट नहीं हुआ तो आपकी फैमिली में से भी कभी कोई बंदा जा नहीं पाएगा। इसलिए आपने जो भी करना है सोच समझ के करिए। ये गलत तरीका है, इस गलत तरीके से यदि आप वहाँ रहते हैं नुकसान आपका ही होगा। हम लोग किसी को भी सलाह नहीं देते प्रोटेक्शन वीज़ा की। बाकी अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है, आप अपनी डिटेल हमें व्हाट्सएप पे डाल दें। हमारे कंपनी के पैनल पे बहुत सारे हमारा एजेंट्स हैं, इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं, हम आपकी डिटेल उनको फॉरवर्ड कर देंगे। अगर किसी के पास लॉ ग्राउंड पे आपके लिए कुछ सोल्यूशन हुआ तो आपको ज़रूर गाइड कर सकते हैं। जितने लोग मेरे साथ लाइव में कमेंट में हैं, अभी उनके कमेंटों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, प्लीज़ चेक। अभी मैं इस समय तो नहीं चेक कर पाऊँगा। जिनके कॉल नहीं मिल रहे उनको विनती है कि आप कल परसों 2 दिन
हमारा ऑफिस ओपन है, आप संडे को भी दफ्तर में विजिट कर सकते हैं। मेरे पास फंड्स प्रोबेबली हैं। जी पायल मैडम, हो जाएगा वीज़ा आपका। आप हमें अभी जो स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहे हैं, इन किसी भी चारों नंबरों में किसी भी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दें। मेरी विनती है कि वर्क परमिट अगर किसी को चाहिए, अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ साइंस ग्रेजुएट है, 5 साल का तजर्बा है, इंग्लिश अच्छी है, तो उसके सीवी पे काम किया जा सकता है। अगर आप मजदूर हैं बिल्कुल मत अप्लाई करिए, ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपना समय और पैसे ख़राब कर लेंगे। हेलो जी, राम राम। हाँ नमस्कार सर। जी क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा नाम कमल है और मैं ना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, वो मुझे स्पॉन्सरशिप दे सकता है, मैंने बात की थी। परमानेंट है वहाँ पे? नहीं सर, वो स्टूडेंट वीजा तो दिया था यहाँ से, वो अभी वर्क पे है वहाँ पे। हाँ जी, उसको बोलो एक फॉर्म होता है 1149 फॉर्म, वो साइन करके भेज दे, फिर वीज़ा मिल जाएगा आपको। सर एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरे मम्मी पापा ना यहाँ रिटर्न नहीं देते हैं, तो मतलब उनका क्या रहेगा? मतलब फंड तो दिखा देंगे, चलो कुछ नहीं दिखाना। अगर उसको बोलो वहाँ से किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के कागज आपको भेज दे, अगर वहाँ का कोई नागरिक आपकी जिम्मेदारी ले लेगा, फिर कोई फंड नहीं शो करने, फिर ऐसे वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं आया भी था सर सुबह आपके ऑफिस में। आपको 1149 फॉर्म लेना है किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से, फिर आपका बिना फंड के वीज़ा लग जाएगा। ठीक है सर। मलिक तारिक हुसैन, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर लिखा है। आज हमने 4 नंबर लिख दिए हैं। ये चारों देवी जी हैं, मेरी 4 बहनें जो हमारे दफ्तर में पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। ये चारों सीनियर काउंसलर्स हैं, चारों मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनके नंबर हमने व्हाट्सएप पे दिए हैं, आप इनके साथ बात करिए, जो अभी आपकी लाइव के दौरान या लाइव ख़त्म होते मेरे साथ बात करा देंगे। जानवी मेकओवर, जानवी मेकओवर, मेरी बेटी के 12th में 55% है, 23 पास आउट है, इसका ऑस्ट्रेलिया का बन सकता है? क्या बोलूं बताइए आपको। दुनिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से तो बन ही नहीं सकता। मेरी किताब में ना है ही नहीं। हाँ बन सकता है, 6 महीने लगेंगे। क्या आप 6 महीने रुकने के लिए तैयार हैं? अगर आप 6 महीने बैंक में फंड जमा करा सकते हैं, अगर आप 6 महीने का पे रोल रन दिखा सकते हैं, अगर आपका बच्चा 6 महीने रेगुलर कहीं पे जॉब कर लेता है, तो ये वीज़ा वूज़ा बड़ी छोटी चीज़ है, वीज़ा मिल जाए। जिम्मेदारी लूँगा मैं। 6.5 बैंड है, आपकी बिटिया को हम ऑस्ट्रेलिया में भेज देंगे। 6 महीने लगा के हमें उसकी फ़ाइल रेडी करनी पड़ेगी। अश्विन, हिंदी बोलिए सर, स्पीक इन इंडियन नेशनल लैंग्वेज बिकॉज आई एम इंडियन पर्सन, लव यू, आई लव माई इंडिया। आई विल मेक श्योर मिस्टर अश्विनी, मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मेरे पंजाबी दोस्त, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो मेरा जो मदर टंग है वो मेरी पंजाबी है, तो जब मेरे से कोई पंजाबी में बात करता है ना, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि जब मुझे पंजाबी बोलने का मौका मिले। बट मैं मेक श्योर करूँगा कि आगे से हम सारी कन्वर्सेशन हिंदी में रखें। जी राम राम जी। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है और कई बार आपके यहाँ पे कॉल कर चुके हैं, लेकिन आपसे बात ही नहीं हुई सर। जितेंद्र जी क्या करना चाहते हैं? मेरा बच्चा है सर 17 साल का, 18 साल को होने को उसको अभी 2 महीने बाकी है जी। और उसने नीट क्लियर कर रखा है। हाँ जी। तो नीट में उसका स्कोर लो है और मैं उसको ये सोच रहा हूँ कि उसकी MBBS आप अब्रॉड से कराएं। जी। तो मेरा सजेशन तो ये है, और अगर इसमें आपको बेस्ट सजेशन कोई लगता है जिसमें क्या नाम है, वो एक्चुअली क्या है, बाहर सेट होना चाहता है वो जी। पढ़ने में बच्चा जो है वो ठीक है, तो उसको क्या नाम है, अभी जो +2 है उसमें 75% क्या नाम है नंबर आए हैं और नीट जो है उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रखा है, लेकिन उस पर स्कोर लो है सर उसका। क्या काम करते हैं आप? मैं तो एग्रीकल्चर करता हूँ सर। कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा में रहते हैं सर। अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना विदेश से, उस पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टरी के कोर्स हैं वो सिटीजन को देते हैं। हमारे कंट्री के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं
वो भारतीयों के लिए हैं। सुबह कोई बांग्लादेश से या पाकिस्तान से बोले मुझे इंडिया में एमबीबीएस करनी है, हम लोग उसको नहीं करने देंगे क्योंकि वो हमारे लिए है। ऐसे ही जो मेडिकल की पढ़ाई है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में, वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए होती है, वो हमारे लिए नहीं होती। हमारे लिए होती है रशिया में होती है, यूक्रेन में होती है, ऐसी छोटी छोटी कंट्रियों में होती है, और उसको भारत में मान्यता नहीं होती उस एमबीबीएस को। रशिया से जो क्या नाम एमबीबीएस करते हैं उसकी मान्यता नहीं है इंडिया में? नहीं होती। अगर आप मान लो अमेरिका से कराते हैं एमबीबीएस के चक्कर में 5-7 करोड़ रुपया लग जाना जी आपका, और 13-14 साल लग जाने बच्चे को डॉक्टर बनते जी। वहाँ पहले 4 साल की बैचलर होती है, उसके बाद चुनाव किया जाता है कि आपको कौन सी मेडिकल की फील्ड में पढ़ना है। जो काम हमारे यहाँ 12वीं के बाद हो जाता है, वहाँ पे बैचलर के बाद शुरू होती है मेडिकल की पढ़ाई। मैं हल निकाल सकता हूँ आपका, मैं विदेश भेज सकता हूँ, जिस कंट्री में बोलेंगे उस कंट्री में भेज सकता हूँ, बट मैं ये डॉक्टरी के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि लिमिटेड सी सीट होती है और दाखला लेना बहुत मुश्किल होता है जी। बच्चे ने ऐसा बताया था कि सर आप एमबीबीएस रशिया कर रहे हैं अभी, जी ऐसे जैसे रशिया से करते हैं, जी। तो रशिया से अगर आप करते हैं, आप बता रहे थे कि रशिया यूक्रेन। ओ भाई साहब, वो बेवकूफ़ बनाने वाली, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जी उसकी। अच्छा अच्छा। जितने भी लोग करके आते हैं वो डॉक्टर बतौर डॉक्टर इंडिया में काम नहीं कर सकते जी। वो अच्छा, वैलिड नहीं है वो? कोई वैलिड ही नहीं। जिसके बाप का डॉक्टर है, जिसका ऑलरेडी हॉस्पिटल है, वो अपने अस्पताल में बिठा लेते हैं बच्चे को। अदरवाइज अगर आप यूक्रेन से, रशिया से, कहीं से भी कोई डॉक्टरी करके आते हैं, आप भारत के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज ए डॉक्टर। लेकिन उसमें एक ऑप्शन है, जैसे आपकी भी कई बार मैंने वीडियो देखी है कि जैसे क्या नाम आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं जी, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम उसके अच्छे स्कोप है। हाँ, नर्सिंग बहुत अच्छे है, नर्सिंग के लिए जा सकते हैं आप। नर्सिंग की पढ़ाई ले सकते हैं, 3 साल की नर्सिंग है ऑस्ट्रेलिया में। एक नर्स की तनख्वाह 10 से 12 लाख रुपए होती है जी महीने की। हम नर्स के कोर्स के लिए भेज सकते हैं आपके बच्चे को, एमबीबीएस में नहीं भेज पाएंगे। तो जो नर्सिंग है वो अगर ऑस्ट्रेलिया से कराते तो 3 साल की 3 साल की नर्सिंग है जी। नर्सिंग जैसे ही खत्म होगी डिग्री, 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। जब आप 2 साल काम कर लेंगे तो आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है। यानी कि टोटल अगर आप देखते हैं तो 3 और 4 7 साल का वीजा यहाँ से ही कंफर्म्ड होता है आपका। अच्छा, 7 साल का वीजा पहले ही लग जाएगा यहाँ से? हाँ जी, 3 साल का यहाँ से लगता है, 4 साल का वहाँ जाके एक्सटेंड होता है जब आप डिग्री खत्म करते हैं। अच्छा, ये काम 15-20 दिन में हो जाता है। महीने में आपका बच्चा चले जाएगा नर्सिंग पढ़ने के लिए। अच्छा। उसमें जैसे क्या नाम है वहाँ पे नर्सिंग करता है जी, तो वो जो नर्सिंग की डिग्री मिलेगी उसको इंडिया में वैलिड है, वो वहाँ पे वैलिड है? इंडिया में करना ही क्या है जी भाई, इंडिया में क्या आपको मिल जाना, वहाँ 10-12 लाख रुपए तनख्वाह है। इंडिया में क्या करेंगे आके, फिर वहीं रहेंगे जी। इंडिया में क्या दे देगा, 25-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाएगी। वहाँ पे अगर आपको नर्सिंग करानी है, बच्चे को लेके मेरे पास आ जाओ, मोहाली में दफ्तर है हमारा, मैं महीने के अंदर अंदर भेज दूंगा जी बच्चा आपका। मोहाली में? जी, मोहाली में आपका दफ्तर कहाँ से है? आप गूगल में लिख लो विनय हरी मोहाली, आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट रोड पे दफ्तर है हमारा। जैसे हरियाणा से आओगे शुरू में मिल जाएगा आपको। हरियाणा में आपका कोई ऑफिस नहीं है? नहीं, हमारा हरियाणा में कोई ऑफिस नहीं सर। और दिल्ली में? नहीं जी, नहीं, हम लोग सिर्फ चंडीगढ़ में ऑपरेट करते हैं। चंडीगढ़, मोहाली या जलंधर में ऑफिस है हमारा। अच्छा, तो उसमें आप ये बताइए ना कि कॉस्ट कितने आ जाएगी, लगभग बजट कितना बन जाएगा? जाने का खर्चा 15 लाख रुपए आएगा, सारा खर्चा 40 लाख रुपए आएगा। 40 लाख? जी, इतना पैसा लग जाएगा डिग्री पर खत्म करते करते आप। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी जगह, बच्चा काम कर लेता है वहाँ जाके। बच्चों को 15-20 दिन महीना लगता है सेटल होने, उसके बाद जॉब मिल जाती है। उसमें हमारे को ये देखना है ना कि जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में जाते तो 15 लाख तो वो लग गए, हाँ जी, और वहाँ पे जाने के जैसे फर्स्ट ईयर में तो उसका लगेगा ना, हाँ फर्स्ट जी, ईयर में क्या नाम कितना कॉस्ट आ जाएगा? डिपेंड करता है ना जी। अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसकी 15 लाख रुपया सेमेस्टर की फीस है। अगर कॉलेज में जाते हैं तो 15 लाख रुपए साल की फीस होती है। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 15 लाख रुपए? 15 लाख 6 महीने की फीस है। 1 साल की फीस 30 लाख रुपए है। 3 साल की डिग्री में 90 लाख रुपए लगता है अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई महंगी होती है, कॉलेज की पढ़ाई सस्ती होती है। अच्छा, आपने बच्चे को साथ लेके एक बार हमारे दफ्तर आ जाओ, ये डिटेल्ड का काम है। आधा घंटा बैठ के आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। महीने में बच्चा आपका चला जाएगा। ठीक है सर। हम गारंटी लेंगे बच्चे आपके की, आपका बच्चे का फ्यूचर बनेगा और उसकी पीआर होगी।
हेलो। जी ठीक है सर, ऑफिस में से मैं निकाल के आपके यहाँ। हाँ जी, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम लोग अभी का डिटेल भेज देंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी। आप भी यदि अपने बालक को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो एक बार मिलिए आके हमें। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यही सबके सपने होते हैं। खाली डॉक्टर के 50 तरह के कोर्स होते हैं मेडिकल से रिलेटेड। आप MBBS नहीं करेंगे, नर्सिंग कर लेंगे, नर्सिंग नहीं करेंगे, साइकोलॉजी कर लेंगे, साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, फिजियोथेरेपी पढ़ लेंगे, कोई डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। हर तरह की पढ़ाई होती है ऑस्ट्रेलिया में। हेलो जी, राम राम। जी गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, मिनिमम कितना खर्चा आ जाएगा, वीजा पासपोर्ट वगैरह सब चीज़? कौन सा वीज़ा लेना है आपने? काम का करके नहीं, ऐसा नहीं होता जी, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। कितना पढ़े हैं आप? पढ़े लिखे लोग जाते हैं, काम करने तो जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, हमारे बहुत से लोग तो नहीं नहीं, जाने सऊदी में जाइए आप, सऊदी में, मिडल ईस्ट में, दुबई में, दोहा, कतर, उधर जाते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं होता जी, वहाँ पढ़ा लिखा हाँ, तो इंजीनियर मतलब- जाता है जी, इंजीनियर जाता है, डॉक्टर जाता है, साइंटिस्ट जाता है जी, वहाँ पे मजदूर नहीं लेते ऑस्ट्रेलिया वाले। ट्वेल्थ क्लास वगैरह चलेगा नहीं चलेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं चलेगा भाई साहब, मास्टर डिग्री वाला जाता है अच्छा जी। अगर आप भी मजदूर हैं, सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सिर्फ वो लोग जाते हैं जो करीम होते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री करी होती है, कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं। एक ही तरीका है जाने का, पढ़ाई का, एजुकेशन। अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अभी हमें कॉल करें, आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। नेक्स्ट है इंदरपाल बजाज। मेरी बेटी भी 10वीं कर रही है, वाइफ ने MA की हुई है। इंद्रपाल जी, आप एक बार दफ्तर विजिट कर लीजिए। राज, सुमन, श्वेता राज। आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया बाय 1, आई हैव 1 रिफ्यूज, सो कैन आई गो टू ऑस्ट्रेलिया? देखिए, कोई भी ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, कोई नहीं रोकता जाने से। वीज़ा चाहिए, वीज़ा तो मिलेगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने के 2 रास्ते हैं, पढ़ने पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। घूमने तो जा सकते हैं अगर पहले दुनिया में कहीं पे घूमे हैं। विजिटर वीज़ा लेने के लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए होती है, अगर कोई रिश्तेदार भाई बहन आपको बुलाता है वहाँ से। हेलो जी, राम राम। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, मेरा नाम साहिल है सर, साहिल कालड़ा जी, क्या जानना चाहते हैं साहिल जी? हाँ जी सर, मैं करनाल हरियाणा से हूँ सर। मैंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल से, जी, और अभी मैं बीटेक की हुई है सर मैकेनिकल से, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ सर। कितनी देर का एक्सपीरियंस है आपको? सर एक्चुअली बीच में मैंने बिजनेस किया कुछ टाइम, 2 साल, और उसके बाद अब मैं जॉब कर रहा हूँ सर। जी साहिल जी, क्या जानना चाहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा सर पूछना था, मतलब मेरी वाइफ है और छोटा बच्चा है 3 साल का, जी, तो हमारे लिए मतलब कोई एडवांटेज इसमें, मतलब वीजा का कैसे रहता है, कुछ है तो बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, आप डायरेक्ट PR डाल दीजिए सर। 6 महीने साल में आपकी PR आ जाएगी, वो फ्री में हो जानी है सर, उसमें पैसा नहीं लगना कोई भी। नहीं, जैसे सर मैं यहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरा है फील्ड, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से ही जॉब कर रहा हूँ मैं। जी और तो मुझे मतलब सीधा, जैसे हम 3 जने हैं, वाइफ है, बच्चा है, मैं हूँ, जी तो हम लोग इसमें मतलब PR, एक तो स्टडी वीजा होता है आप बता रहे हैं, जी। तो इसके अलावा मतलब ऑप्शन आप कह रहे हैं कि PR? सर, जो लोगों के पास बैचलर डिग्री होती है, एक्सपीरियंस होता है ना, उनकी डायरेक्ट PR हो जाती है। ओके, तो सर इसमें खर्चा वगैरह क्या आता है सर? फ्री में होता है सर, 2-4-5 लाख रुपया कोई ना कोई एजेंट ले लेगा, हो जाएगी PR। 6 महीने साल लगता है इसको। ठीक है, मतलब हमें सीधा आप एक मतलब काम करिए, आप ना PR गूगल में लिखिए मारा एजेंट, एक मारा वेबसाइट, एजेंट, ठीक हाँ, है। एक वेबसाइट खुलेगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। वहाँ पे 5 से 10 हज़ार एजेंटों की एक लिस्ट है। जो भी आदमी आपको अच्छा लगता है, आपकी जाति के हिसाब से, नाम के हिसाब से, किसी 4-5 बंदों को ईमेल कर दीजिए। वो सारे लोग फ़ोन करके ना आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करके बताएंगे आपका काम होना कैसे है। ओके, आप उनको बोलो कि मुझे जनरल स्किल माइग्रेशन लेनी है, आपको ये बोलना है उनको। ठीक है, जब आपको तो 4 बंदे समझाएंगे ना, 4 बंदे समझाएंगे ना, आपको गणित समझ लग जाएगा ये होती कैसे है। फिर आप खुद पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आप खुद अपना गणित लगा के आप अप्लाई कर लीजिए, 4-6 महीने में आप चले जाएंगे। ओके, तो इसमें बीवी बच्चा और मैं तीनों का एक सब साथ होगा process? सब लोग इकट्ठे जाएंगे, 6 महीने से साल लगेगा, इसमें- सारे ठीक लोग है। चले जाएंगे। ओके सर, अगर आपके थ्रू करवाना हो तो मैं सर वो क्या काम करता नहीं सर, मैं स्टडी वीज़ा लेके दे सकता हूँ, आप तीनों जने चले जाओगे स्टडी वीज़ा पे।
वो क्या फिर प्रोसेस रहेगा उसमें? उसमें सर दाखिला होगा यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के लिए, 20 से 25 लाख ठीक है। रुपए उसकी फीस होगी, 5-7-10 लाख रुपए आपके बीमे के लगेंगे, ठीक है। 30-35 लाख रुपए लगेगा, 20-25 दिन महीने के अंदर चले जाओगे आप। ये हम तीनों जाएंगे? तीनों या जाओगे जी, मैं तीनों, अकेला एक जन नहीं, तीनों जाओगे। आप पढ़ने जाओगे, वाइफ का वर्क परमिट होगा, बच्चे का स्टडी वीजा होगा। ऐसे होगा? जी तो मतलब वाइफ का भी यही सेम बीटेक है, वाइफ भी मेरी? हाँ, तो वाइफ को आप वो भी apply एप्लीकेंट कर बना सकते दो, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा उसमें, आप काम कर तो सकते हो फुल उसमें टाइम। सर वो हाउस वाइफ है तो उसमें कोई नहीं, दिक्कत हाउस तो वाइफ मतलब का नहीं हो gap- पाएगा, वर्किंग। हाँ, अगर आप खुद स्टूडेंट बन जाओगे ज़्यादा अच्छा आपके लिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर। इसमें कोई एज क्राइटेरिया? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी सर 31 है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 35-40 साल तक मिल जाता है वीज़ा। ठीक है सर, ओके, आप thank you। क्या करो, आप ना अभी स्क्रीन पे जो नंबर नज़र आ रहे हैं ना, हमें व्हाट्सएप पे अपना CV और अपनी डिटेल भेज दो सारी। आपने है। आईएलटीएस या पीटी का टेस्ट दिया है? नहीं सर, मैंने कभी आप नहीं आईएलटीएस किया। या पीटी देना पड़ेगा, बाकी के कागज़ भेज दो, हम असेसमेंट करके बता देते हैं। जिस दिन आपका आईएलटीएस पीटी हो जाएगा उसके बाद 1 महीने में आप चले जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा सर ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा में अगर अप्लाई करें तो उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा? नहीं, या अलग? अप्लाई तो करें, वहाँ होना कुछ नहीं, जाके वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं। कनाडा में? जी जी जी, वो तो सुनने को मिल ही रहा है सर। कुछ नहीं है जी वहाँ तो पे इस ऑस्ट्रेलिया सब। बेटर है? ऑस्ट्रेलिया ठीक है जी, आज के दिन ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। जी ठीक है। जैसे सर मैं ये आप 3 जने बता रहे हैं, इसमें पेरेंट्स भी ऐड हो सकते हैं? जैसे नहीं सर, मतलब नहीं पकड़े नहीं, हैं हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे सर। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, जी, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो जी, राम राम जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी। जी राम राम जी। हेलो जी, वर्क परमिट है आपके को कनाडा में? हाँ जी, हाँ जी, मेरे थैले में पड़ा जी, मैं अभी निकाल के देता हूँ जी आपको। वर्क परमिट है, हाँ पड़ा, यहीं पड़ा था। आपने उठाया अभी यहाँ से वर्क परमिट? लवप्रीत, यहाँ पे अभी 10 वर्क परमिट पड़े थे ऑस्ट्रेलिया के, आप उठा के ले गए शायद। ओ भाई, ऐसे नहीं होता, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास बातें होती हैं, कर लो हमारे से जितनी करनी है। माफ़ी चाहूँगा, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, हम सीरियस। समझिए, ये धोखा है, वर्क परमिट एक धोखा होता है। ये होता है तो सिर्फ लायक लोगों के लिए, मजदूर के लिए नहीं होता। मत इस झांसे में फंसिए। अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं, आपको 4-5 साल का तजर्बा मिल जाएगा जी, 15-20 लाख रुपए लगता है, 6 महीने साल में मिल जाएगा। आप मजदूर हैं, नहीं मिलेगा। आप जुगाड़ करना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब है, मिल जाएगा। नर्स है तो भी मिल सकता है। 5 साल का तजर्बा भी चाहिए, ढंग की जगह नौकरी भी करी हो, मजदूरों को नहीं मिलता। हमारे पास अगला कमेंट है, वीर जी मेरे बच्चों को भी घर भेज दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सबसे, मैं आपकी फाइल लगा सकता हूँ, मैंने वीज़ा नहीं देना, मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं एक सलाहकार हूँ, आई एम ए कंसल्टेंट, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। मुझे पता है काम कैसे होता है, सारे काम हमारे भी नहीं होते, फाइनल डिसीजन एक ऑफिसर का होता है। जी, नाम बताइए अपना। सर कप्तान सिंह मेरा नाम। जी कप्तान सिंह जी, क्या काम करते हैं? सर मैं तो आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं टूरिस्ट वीजा के बारे में जानना चाहता हूँ। मिल जाता है जी, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑफिसर्स को तो वैसे ही दे देते हैं जी, 10 दिन लगते हैं वीज़ा लेने में जी। जी सर। सर मुझे ऐसा है, लड़के के लिए चाहिए, लड़का 25 साल एज है। जी, उसको नहीं देंगे सर। अच्छा जी। उसके चांसेस है ना कि वापस आएगा नहीं, वहाँ आके वहीं रह लेगा जी। अच्छा जी। काम क्या करता है आपका लड़का? लड़का काम तो अभी कुछ नहीं का, 2-3 जगह के वीजा किए थे अप्लाई और रिजेक्ट हो गए। पढ़ाई कितनी करी है उसने? तो पढ़ाई तो सर 12th की है। कब करी है 12th? 2022। उसके बाद कुछ नहीं किया बच्चे ने? उसके बाद सर 1 साल का कंप्यूटर वर्क किया था, तो बाकी तो 1-2 बार उसने दुबई का टूरिस्ट लगाया था, कुवैत का लगाया था, वो हो गया है। कहाँ रहते हैं आप? अमृतसर में सर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਣਾਓ। ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਆਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਫਿਰ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੀ CBSE ਚੋਂ ਕਰਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਕਰਾਈ? ਕੀਤੀ CBSE ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ TV ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ ਕੁਵੈਤ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵਰਕ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹਦੀ? ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਰ UK ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸਟੱਡੀ ਚ ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਲਸ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਕਰਾਓ, ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਕੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਂਗਾ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਲ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਆਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਆਣਾ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਕੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਣਾ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਭਾਜੀ। ठीक है सर। अच्छी गल जय। जय जवान जय किसान, ये एक नारा ही नहीं है। आज जवान और किसान के सहारे ही देश चल रहा है, और दोनों को दबाया जाता है, और दोनों के बच्चे अक्सर नालायक रह जाते हैं। जवान का सारा ध्यान होता है बॉर्डर पे, देश के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश की जवान पे। ऐसा ही कुछ किसान के साथ होता है। किसान सुबह शाम मेहनत करता है एंड दोनों के बच्चों के पढ़ाई में नंबर कम रह जाते हैं। अगर आप भी जवान हैं या किसान हैं, आपका ऋण कोई नहीं दे सकता। जो आप दोनों मेहनत करते हैं उससे देश का नाम आगे होता है। सो अगर आप जवान हैं, किसान हैं, आपके बच्चे को बाहर भेजने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। मुझे मिलिए आके, समझाइए क्या जानना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है जगनप्रीत। मेरे 6.5 बैंड है पीटी में, मेरी रिफ्यूज़ल की, मेरी ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लग सकती है? ऑस्ट्रेलिया की स्टडी वीज़ा की फ़ाइल लगाने के लिए 6 बैंड चाहिए आपको, आपके 6.5 हैं, आपकी फ़ाइल लग सकती है। स्क्रीन पे जो नंबर नज़र आ रहे हैं, नंबरों पर अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दें अगर आपको स्टडी वीज़ा पे जाना है। विक्रम सिंह, मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगवाया था, रिफ्यूज़ल आई है। अगर टूरिस्ट वीज़ा पे रिफ्यूज़ल आई है, आप किसी से इनविटेशन मंगाइए, किसी से स्पॉन्सर मंगाइए, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से दोबारा डाल दीजिए, वीज़ा मिलने के चांस होंगे। जब आप स्पॉन्सर मंगाएंगे या 1149 फॉर्म साथ में मंगाइएगा।
सर न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा करते हो बट मेरी प्रोफाइल कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 साल का गैप है। हेलो जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। विनय हरी जी राम राम से बात कर रहे हो? जी, विनय हरी बोल रहे हैं जी। नाम बताइए, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जींद हरियाणा से बोल रहा हूँ। नाम मोहित है। जी मोहित भैया, राम राम। जी राम राम। मैंने ये पूछना था कि मेरे पीटी में 58 स्कोर है और मैंने 2024 में +2 पास आउट किया आर्ट से, हाँ जी। तो मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्या करना है कनाडा जाके? और किधर जाऊँ? ना जा भाई, क्यों वहाँ पैसे खराब होने? यहाँ यहाँ रह ले या ऑस्ट्रेलिया चला जा यार। कनाडा से तो लोग वापस आ रहे हैं हर रोज। ऑस्ट्रेलिया का लगता तो नहीं यार। मेरा पीटी में स्कोर तो 58 है, आर्ट से कर किया। नंबर कितने हैं 12वीं में आपके? 65% है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो आर्ट थी। आर्ट में क्या? इकोनॉमिक्स थी? इकोनॉमिक्स नहीं, पब्लिक एड और ज्योग्राफी। पब्लिक एड और ज्योग्राफी। अभी किया क्या 2025 में आपने? गैप में क्या किया? कुछ नहीं किया। यही कुछ कर ले भैया, वीजा नहीं लगना। ठीक है भाई। नहीं लग रहा मेरा भरा। जंट जुंट बन जा, ज़्यादा अच्छा है। आजा, तुझे काम सिखा देते हैं, लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दे। अच्छा, सिखा देगा काम? आज काम कर सिखाएंगे। अब तूने फोन करा भैया, कुछ तो काम करेंगे मिलके। कुछ तो करा यार। आ जाओ, कल आ जाना मोहाली। आपके चांसेस बहुत कम है वीज़ा के। अगर आप 2025 की जस्टिफिकेशन दे देते हैं ना, मैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की फाइल लॉन्च कर दूंगा। चांसेस 50-50 होंगे, क्योंकि आजकल वीज़ा मिल रहा है सबको। ठीक है। बट गारंटी नहीं है आपके काम की। ठीक है भाई। पिताजी क्या करते हैं आपके? आर्मी में है। आप कोशिश करो, अगर आपके पास समय है ना, मुझे मिल के जाना। ठीक है सर। मैं आपका हल निकाल दूंगा। अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद चले जाओगे आप। कहीं ना कहीं से ना पे रोल रन कराओ, कोई आपका गैप पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है। ठीक है, आपको जब भी समय होगा मुझे मिल के जाना मोहित भाई। ठीक है भाई। पता नहीं क्यों कई बार ना फ़ोन पे ही ऐसा लगता है कि यार आपका ना कोई रिश्ता है किसी के साथ। आप फ़ोन पे किसी के साथ ऐसे बात करते हो जैसे तय था उसका फ़ोन आना। ये वक्त मुकर्रर कर रखा था भगवान ने कि हाँ मोहित भाई फ़ोन करेंगे तुम्हें जींद से, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम उसको बोल के दिखाना कि भैया तुम्हारा वीज़ा लगेगा, तुम देना उसको गारंटी। कई बार भगवान आपको वर्ड्स दे देते हैं। वाक सिद्धि होती है कईयों के पास, पता आपको? जो लोग धर्म कर्म करते हैं, जिनको छठ योग पता है क्या होता है, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें आता अष्ट निधि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। ऐसी एक सिद्धि होती थी वाक सिद्धि। जो आदमी कुछ बोलता है वो पूरा हो जाता है। मैं भी जब किसी के साथ बात करता हूँ बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि आपके द्वारा मुंह से निकाला गया हर वर्ड किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। जो भी मैं आपको गाइड करता हूँ, बोलता हूँ, ये यहाँ से निकलता है, तैयारी नहीं होती इसकी कोई भी। आपने बोला मेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने बैंड हैं, जो जो आप बोल रहे होते हैं, यहाँ पे गणित चल रहा होता है। यहाँ भी विनय कुमार अभी वीज़ा आया 2024 वाला किसी का। हाँ यार, वो आर्ट्स वाले आ गए थे। आर्ट्स वाला आया था, अच्छा कितने नंबर थे क्या था। अब यहाँ पे मोहित भाई के नंबर भी कम हैं, आर्ट्स से पढ़ा है ढंग के, उसके पास सब्जेक्ट भी नहीं है और गैप भी है। अब ये तो ठीक करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं होता काम। ऐसे कैसे बोल दें हम वीज़ा आ जाएगा। चाहते हैं आपका भी कोई काम हो, कोई सवाल जवाब, कॉल करिए। स्क्रीन के ऊपर जितने नंबर है सब पे व्हाट्सअप कर दीजिए। सारी टीम बैठी है। अब दुकान ऐसे चला रहे हैं हम अपनी, क्योंकि हमारा दफ्तर है चंडीगढ़ में, जहाँ आने के लिए 2000 रुपया कम से कम लगता है। बहुत सारे लोगों को गंगानगर से आता है, कोई रुद्रपुर से आता है, कोई हैदराबाद से आता है, कोई दिल्ली से आता है। किसी का 5000 रुपया लग जाता है आने का, किसी का 10,000 रुपया लग जाता है। तो बड़ा सोच समझ के किसी को बुलाना पड़ता है। एक बंदा अपनी दिहाड़ी ख़राब करके आ रहा है, पैसे भी ख़राब करके आ रहा है। इसीलिए हमने फैसला लिया कि ये सामने छतरी लगाएंगे और ये माइक मुइक रख के ऐसे ही खिलाएंगे। ऑनलाइन की दुनिया है, तो हमने भी शुरू किया। हमारे पास आगे का जो सवाल है, मुझे आपके क्या लिख रहे हैं, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं इसलिए सुन रहा हूँ। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं
बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी आपके मन की सारी ख्वाहिशें पूरी करें, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। पैकेज सिस्टम आपने स्टार्ट किया था? हाँ जी किया था जी, जिम्मेवारी लेंगे। हाँ जी, इतिहास में लिखा जाएगा। वीसा वीज़ा लगने के बाद लेते हैं, खेलते हैं, खिलाते हैं। पैसे वीज़ा लगने के बाद एक गरीब आदमी जब घर से निकलता है, उसके घर से निकलने के पैसे लगते हैं। यहाँ $2000 एम्बेसी की फीस है। 1.5 लाख रुपया खराब हो जाना जिसका वीज़ा नहीं लगना। आदमी कहता भाई जी मैं 3 लाख दे दूंगा, मेरा काम करा दो फिर ले लेना। आपको पता है जो वीज़ा लगना है तो आपने 1.5 लाख जेब से भी लगा देना है। आपको पता है वीज़ा लगना ही नहीं तो आपने बोला ना मैं नहीं, ये पैसे तुम भरोगे। जब आपको रुपए की चीज़ के 3 रुपए मिल रहे होते हैं फिर आप अपनी जेब से भी लगा देते हो, जिसे कहते हैं पैकेज सिस्टम। अब कुछ लोग तो जहाज चलाना सीखते हैं पढ़ाई करके। आपने 2-4 साल पढ़ाई पढ़ी, आपने पायलट का लाइसेंस ले लिया, आपने जहाज चलाया, जहाज चल गया। एक आदमी जहाज में बैठ के सफाई कर रहा था, सफाई कर्मचारी जहाज में सफाई कर रहा था। वहाँ एक किताब पड़ी थी जहाज के अंदर ही, जिस पे ऊपर लिखा था जहाज चलाना सीखें। वो आदमी ने किताब पढ़नी शुरू करी, उसमें लिखा था लाल रंग का बटन दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा, हरे रंग का बटन दबाएंगे रेंगना शुरू हो जाएगा, काले रंग का बटन दबाएंगे तेज हो जाएगा। आदमी किताब पढ़ता गया, बटन दबाता गया, जहाज हिला, जहाज चलना शुरू हो गया, जहाज उड़ गया। एक सफाई कर्मचारी ने जहाज उड़ा लिया। अब जहाज उड़ रहा है, वो पढ़ रहा है इसको उतारना कैसे है। लास्ट में लिखा है जहाज उतारने के लिए भाग 2 पड़े। भाग 2 जहाज में है ही। तो बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में जिनको जहाज उड़ाना आता है उतारना आता ही नहीं। ये पैकेज सिस्टम में लोग नकल मार के चालू कर देते हैं। हाँ जी हम भी लेंगे पैसे वीज़ा लगने के बाद। ओ भैया आगे उतारना कहाँ है, पैसे तो वीज़ा के बाद ले लो कि तुमने कागज ही नकली डाल दिए सारे। अब बंदे की PR कैसे होगी। आगे चलते हैं। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास है ही कुछ नहीं भैया, सब कुछ तुम्हारे पास है। ये देखो हमारे पास, हमें कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए आप अपना समय खराब मत करिए। आप जाइए कहीं और, कुछ और देखिए जाके। किसी को भी हमारी बात अच्छी नहीं लगती उसको विनती है कि कुछ और कर लीजिए। सर न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा करते हो? क्या करूँगा करके यार, बहुत किया है, अब दिल नहीं करता। चंद दिन पहले परमदीप साहब मिले, परमदीप सिंह जो भीषम मितामा है न्यूजीलैंड एजुकेशन इंडस्ट्री के। वो बोले विनय काम शुरू करो यार, न्यूजीलैंड करो। मैं कहा सर न्यूजीलैंड कर लेते हैं। वो बड़ा प्रोत्साहित करके गए, मोटिवेट करके न्यूजीलैंड हमें खेलते हैं सर, हम भी करते हैं। मैंने न्यूजीलैंड में फ़ोन किया 4 लोगों को, पुराने साथी थे जिनके साथ रहता था वहाँ पे। मैं कहा हाँ भैया क्या सीन है। हमारा सीन भैया सिटीजन के पास भी काम नहीं है। जो लोग न्यूजीलैंड जा रहे कान खोल के सुन लो मेरी बात, कान दोनों खोलो सुनो। न्यूजीलैंड में सिटीजन के पास भी नौकरी नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगले 2-4 साल कंट्री उठने वाली ही नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप का 25-30 लाख रुपए खराब मत करो। टिक जो यहाँ पे रह के कोई काम कर लो। गलत तरीके से जाने की कोशिश करोगे कुछ नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड वीज़ा दे देगा तुम्हें, 25-30 लाख रुपए छीन लेगा, उसके बाद उतर के नौकरी नहीं है, खाने के लिए भी नौकरी नहीं है। ये टोकन सिस्टम चला था न्यूजीलैंड में वर्क परमिट का, बहुत सारे नकली लोग उतर गए, उनके पास भी नौकरी नहीं है। जहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल मत जाइए। जिसके पास 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है वो खर्चना चाहता है, जगह ढूंढ रहा है, तो न्यूजीलैंड चले जाइए। ऑकलैंड में बड़े अच्छा कसिनो है, वहाँ पे जाकर आराम से मौज करिए। हेलो जी राम राम। हेलो जी राम राम, विनय हरी बोल रहा हूँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सत श्री अकाल। राम जी, मैंने को आपका रील देखी, मैंने आपने कोर्स के बारे में बताया था। जी हाँ जी, वो वीजा क्या करें जी, अब लोगों को सिखा रहे हैं जी कैसे वीज़ा लेना है। आप क्या काम करते हैं?
मैं फिलहाल तो जॉब करता हूँ। अगर आप एक बच्चे को बाहर जाने के लिए सलाह देते हैं ना, हाँ जी। आपको 2 लाख रुपए मिलता है उसमें। इंग्लैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी 4 लाख रुपए कमीशन देती है। ठीक है। हम ये सारा काम आपको 100 रुपये में सिखा देंगे। अगर आपको अच्छा। सीखना है, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। जैसे ज्वाइन हो जाएगा फिर आप परमानेंट हमारे एसोसिएट बन जाते हो। आपको ईमेल व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। हम आपको वेबिनार भी ज्वाइन कराएंगे। बाकी जब आपका मन हुआ आप चंडीगढ़ आए, हमें मिल के चले जाना। आपको एक ऑफिसर अलॉट कर देंगे, रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपके जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी क्वेरी सॉल्व करता रहेगा। आपको कोई विजिटर वीज़ा लगवाना, किसी का स्टडी वीज़ा लगवाना, पीआर करानी है, आपको 2, 4, 5, 10 दिन में सब कुछ सिखा देंगे। फिर आपका जब मन हो आप खुद कर लें, हमारे से कराना हमारे से करा सकते हैं। ठीक है। मैंने जैसे कि ये कोर्स कितने का है सर? 100 रुपये का। अच्छा, 100 रुपये का है। क्या करूं यार, मैं शौक के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे है कि अगर मुझे कोई विद्या दी है भगवान ने, मैं लोगों को बांटूं। इंग्लैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाओगे 4 लाख रुपए वहाँ से कमीशन मिलता है। हाँ। आधे आप रख लेंगे, और कुछ हम रख लेंगे, कुछ हमारे स्टाफ वाले बांट लेंगे। हम्म। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में कितना जाते हैं वहाँ से भी पूरा मिलते हैं, कनाडा जाते हैं वहाँ से भी मिलते हैं। कितना इंग्लैंड जाने का कितने का पैकेज है? आप ना जो हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन कर लो। उस पे 1200-1400 लोग हैं ऑलरेडी। हम लोग उसी ग्रुप में आपको सारी चीज़ें रोज समझाया करेंगे। आपके पास जो लिंक आया उस पर 100 रुपया पे कर दो हमें। ठीक है, मैं करता हूँ। समय ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट हैं, अभी कमेंटों की तो बाढ़ आई पड़ी है। आप एक काम करें, आप ना आधे घंटे के लिए छुट्टी करें। अभी बजे हैं 5:45, तो हम लोग 6:30 बजे दोबारा इकट्ठे होते हैं। 6:30 नहीं, 7 बजे इकट्ठे होते हैं। 7 बजे चालू करेंगे दुकान हम ऑनलाइन की। फिर आराम से जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक बातें करेंगे। मेरी को बात बुरी लगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आप तो शायद कोई काम होगा, मेरे को कोई काम नहीं होता। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ और मेरी खुराक होती है ये। मैं रोटी खाऊं ना खाऊं, मैं फेसबुक लाइव वीडियो ज़रूर करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। 7 बजे दोबारा लाइव होते हैं और आपकी समस्याओं का हल निकालते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए इस पे स्टूडेंट वीज़ा की इंक्वायरी के लिए हमें व्हाट्सएप करते रहिए। जिसको मिलना है कल का हमारे साथ समय बना लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।